We'll start with the kingdom Protista. Kingdom Protista is an intermediate between the kingdom Monera on one side and three kingdom on another side. First of all, the term Protista is derived from a Greek word that is protistos. प्रोटिस्टोज का मीनिंग होगा द वेरी फर्स्ट कि बिल्कुल पहले, वेरी फर्स्ट. दिस टर्म प्रोटिस्टा coined by Ernest Haeckel. The name of the scientist are also important for competition. Protista is a connecting link between Monera on one side and fungi, plantae, animalia on other side. Got it? So we can say that it is a connecting link. Protista is a connecting link between Monera on one side and another these kingdom on other side. So this we can say how the evolution took place. How the evolution took place. These are eubacteria. These are archibacteria. We have already done. And then evolution took place. And there was Protista. This was kingdom Protista. Then from Protista we have kingdom Plantae, kingdom Fungi, and kingdom Animalia. This is a phylogenetic tree. So I think it's clear to you from this part of discussion that how the evolution has taken place and what is the connecting link. So note down this fast. अगर किसी का माइक म्यूट नहीं है तो म्यूट योर माइक प्लीज़ एंड रेज योर हैंड जब आप ये कर लें.
Kingdom Protista. Protista is derived from the Greek word. Kingdom Protista, where Protista एक ग्रीक वर्ड प्रोटिस्टोस द वेरी फर्स्ट से लिया गया कि पहले ऑर्गेनिज्म थे, and this term was coined by Ernest Haeckel. So here I've told you that it is a connecting link. It is a connecting link with Monera on one side and these three kingdom on the other side. So Protista is a connecting link. Here phylogenetic tree I've told you here. Philo का मीनिंग क्या होता है? Evolution. एक PHYLLO philo. These are the two terms. One is PHYLO philo. Philo is related to evolution. Other is PHYLLO, that is a leaf. Phyloclade, phyllotaxy. So ये leaf से related है. You are supposed to know these prefixes and suffixes. We have started with the kingdom Protista, which is also known as Protocratista. Protocratista. So now moving to the next part. The Protista are eukaryote. Eukaryote. I have told you, U means true. Karyon is nucleus. They have true nucleus. So यहाँ एक हम generalized, typical और generalized डायग्राम ड्रॉ करेंगे of protist. This is a nucleus and this is nuclear material. Nucleus having pores and this is a DNA. Here we have a mitochondria. Mitochondria here Golgi body, ribosomes, ATS. In some photosynthetic form, it has chloroplast, endoplasmic reticulum, and this is flagella. Flagellum. This is the typical diagram of a eukaryotic protist. तो इस यूकैरियोटिक में इसमें ट्रू न्यूक्लियस है, सारे ऑर्गेनेली हैं. जो अगर हम इसको मोनेरा के साथ कंपेयर करेंगे तो वहाँ कुछ नहीं था मोनेरा में, ये कोई ऑर्गेनेल से सिर्फ एक राइबोसोम था. क्योंकि इफ वी कंपेयर इट विद मोनेरा, मोनेरा
was having only DNA and ribosome. This is in case of Monera और इन केस ऑफ बैक्टीरिया. अगर हम इसको बैक्टीरिया के साथ कंपेयर करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो बैक्टीरिया में नहीं थी. नोट डाउन दिस. ये हमने प्रोटिस्ट शुरू किया आज. जनरलाइज डायग्राम ऑफ प्रोटिस्ट. जो टिपिकल यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, जनरली एक्वाटिक है. एक्वा क्या होता है? एक्वा इज वाटर. योर डायग्राम शुड बी परफेक्ट. डायग्राम बहुत अच्छी तरह आपको आनी चाहिए. अब आगे चलते हैं. तो आज हमने ये पहले ये देखना कि क्या क्या चीज़ें, ये तो थोड़ा सा जनरलाइज चीज़ें बताई. अब हम क्या क्या पार्ट करेंगे इसमें. एक तो प्रोटिस्टा में करेंगे हम लोकोमोशन. एक करेंगे न्यूट्रिशन, क्योंकि हमें पार्ट पता होना चाहिए क्या क्या करेंगे तभी कोरिलेट कर पाएंगे. एक करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और एक हमारा पार्ट आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एक एक पार्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप कंपटीशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. पहला आ गया लोकोमोशन. देखिए मेनली 3 टाइप की लोकोमोशन है मेनली. दैट इज वन इज सूडोपोडियल. अदर इज फ्लैजेलर.
and third is ciliary, that is by means of cilia. देखिए ये तीन मेन लोकोमोशन है. अब मैंने सीक्वेंस इनका इसलिए लिखा कि इसमें सबसे कोई कंपटीशन का जो पार्ट है, सबसे फास्टेस्ट जो लोकोमोशन है ये है लोकोमोशन बाय सीरिया, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2 मिलीमीटर पर सेकेंड डिस्टेंस कवर करता है. देन इट इज द स्लोएस्ट एंड इट इज मॉडरेट. तो इसी सीक्वेंस में इसको लिखा गया कि आपको याद रहे कि पहला सूडोपोडियल, फ्लैजेला एंड सिलियरी, दीज आर द थ्री मेन मोड ऑफ लोकोमोशन. whereas two more are there. One is a wriggling propulsions, and fourth is locomotion by mucilage. Locomotion by mucilage. Once again we are telling you about the locomotion. Locomotion 5 टाइप की है, but mainly is of 3 types majority of the animal. बहुत थोड़ों में ये नीचे वाली. सो ये 3, पहला सूडोपोडियल स्लो है, स्लो में स्लोएस्ट है. स्लोएस्ट कितना है? 2 माइक्रोन टू 3 mm तक स्लो है पर सेकेंड. सॉरी, पॉइंट टू. आई एम सॉरी. सी इसको अब इस टाइप से 0.2 माइक्रोमीटर, दिस इज 2 माइक्रोमीटर एंड दिस इज 2 मिलीमीटर. सो ऐसे आप लर्न करिए, स्लो, मॉडरेट एंड मैक्सिमम. So this is first of all, once again I let you know what we are doing today. We are doing in a sequence manner, ताकि आपको याद रहे, वैसे ही रिटेन रहे. पहला लोकोमोशन, दूसरा न्यूट्रिशन, तीसरा एसेक्सुअल एंड देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो लोकोमोशन में सबसे पहले आ गया सूडोपोडिया, देन फ्लैजेलर, देन सीलियरी, देन रिगलिंग, देन लोकोमोशन बाय म्यूसिलेज. सो you can even write it only wriggling locomotion. So note on it. प्रोटिस्टा का लोकोमोशन आप नोट करिए पहले, ये सारा पूरा एज सच, देन विल प्रोसीड फर्दर. जल्दी नोट करिए एंड रेज योर हैंड जब जैसे आप नोट कर लेते हैं. So now we are doing a locomotion. लोकोमोशन में हम पहला करेंगे सूडोपोडियल. सूडोपोडियल, ये सूडो इज फॉल्स, पोडिया is foot, false foot. So this is simply what is there, that is a protoplasmic temporarily
प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस, ये प्रोटोप्लाज्म है, यहां से प्रेशर एक्सर्ट हुआ और ये ऐसे बन गया, ये ऐसे बन गया, एंड दिस इज नॉन एज सूडोपोडिया। फिर दूसरी तरफ को जाना हो तो फिर से प्रोटोप्लाज्मिक ऊपर को बन गया और नीचे वाला रिस्टोर कर गया, तो दिस इज सूडोपोडिया। So this is pseudopodial. Pseudopodial are further of many types. What are those types? First is if it is a blunt end like this, it is called as lobopodia. ये धागे की तरह है, थ्रेड की तरह है, अगर तिरछा ऐसे, देन it is a फिलोपोडिया। लोब की तरह है, लोबोपोडिया। थ्रेड, फिला, थ्रेड, फिला, फिला इज थ्रेड, थ्रेड लाइक, जैसे फिलामेंट कहते हैं। इफ इट इज फिला एंड इट हैज सम axial filament, these are axial filament, that is said to be exopodia. I told you last time that there is a reticule. रेटिकुल का मीनिंग होता है नेटवर्क, जिग जैग। ये वर्ड मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ वी हैव दिस टाइप ऑफ जिग जैग, then such type of are known as reticulopodia. Once again, one is the lobopodia, philopodia, exopodia, reticulopodia. नोट डाउन, जल्दी से नोट डाउन करिए। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। Avish, you are getting? Yes, sir. सर हो रही है शो। मुझे लग रहा है आस्था को शो नहीं हो रही होगी। आस्था को सर अब होगी शो। आस्था बोल रहे हो ना? यस सर। बेटे आप हर बार मेरे लेक्चर को बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, प्लीज डोंट। मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूंगा अदरवाइज। अब ये सारे रिकॉर्डिंग में जाएगी तुम्हारी आवाज। इट इज योर प्रॉब्लम, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। सो देखिए, लोकोमोशन इज बाय मीन्स ऑफ सूडोपोडिया। फर्स्ट इज सूडोपोडिया। सूडो इज फॉल्स एंड पोडिया इज फुट। प्रोटोप्लाज्मिक टेम्पररी एक्सटेंशन है ये। सो ये इस टाइप से एक्सटेंशन है। पहला आ गया लोब की तरह है, इफ इट इज लोब लाइक, if it is thread like, if it has axial filament, if it has network,
So first mode of locomotion is pseudopodia. I think you have done. थोड़ा जल्दी करिए बेटे. तो बहुत ही सिंप्लीफाइड वे से आपको पता चला कि सूडोपोडिया क्या है. प्रोटोप्लाज्मिक टेम्परेरी एक्सटेंशन है, परमानेंट नहीं है. ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है. और कितनी ये टाइप का है? लोबोपोडिया, फिलोपोडिया, एक्सोपोडा एंड रेटिकुलोपोडिया. नाउ सेकंड इज flagella or flagellar locomotion, that is by means of flagella. देखिए ये flagella जो है their movement is whip like. whip like, देखिए whip कैसे समझना है आपने? आपने देखा होगा घोड़े को चाबुक मारते हैं, वो चाबुक मारते हैं, उसको whip कहते हैं. चाबुक की तरह. तो ये जो फ्लैजेला है जनरली एक और दो होते हैं, पर उनका आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता. फ्लैजेला इफ मैनी आर नॉट कोऑर्डिनेटेड. ये टर्म में इसलिए लिख रहा हूं कोऑर्डिनेटेड क्योंकि इसके ऑपोजिट जब हम सीलिया करेंगे दे आर कोऑर्डिनेटेड है. वो चप्पू की तरह, जैसा नाव बोट ओवर ऑफ द बोट है, उसकी तरह काम करते हैं एक दूसरे के साथ मिलके. डिपेंडेंट, दे आर इंडिपेंडेंट. सो दे आर जनरली one or two. Then we have a cilia. Cilia, they are more in number. Cilia small as compared to flagella, more in number, and are coordinated. एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड है. This is the flagella and cilia. Then we have these are main three. Then we have two more. One is wriggling. Wriggling आपने देखा होगा कि wriggling एक worm like. worm कैसे चलते हैं? By contraction and relaxation. Contraction and relaxation of the body. Contraction and relaxation of body. बहुत थोड़े से ऑर्गेनिज्म में जहाँ ये होता है. Then locomotion by mucilage. लोकोमोशन बाय म्यूसिलेज. तो म्यूसिलेज की ये क्रीपिंग और रोलिंग मूवमेंट कहते हैं इसको. क्रीपिंग और रोलिंग. क्रीपिंग और रोलिंग मूवमेंट है. उसमें क्या होता है, ये वॉर्म है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, प्रोटिस्ट है. ये अगर यहाँ म्यूसिलेज सिक्रीट करता है तो ये दूसरी तरफ को मूव करेगा, ऑपोजिट टू दैट.
that it secretes mucilage in the direction opposite to direction of movement. तो बहुत ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है. यू आर सपोज टू नोट डाउन दिस. जल्दी से नोट करिए बेटे. एनीवे देखिए अभी तक बेटे हमने फिर से एक बार देखिए कि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है. रिटेन करना मुश्किल जाती है, कई बार बोरियत लगती है इसमें. तो अभी जनरल सा रीकैप करें लोकोमोशन का. ये लिखना नहीं है आपने, सिर्फ देखना है. लोकोमोशन हमने पहला किया बाई मीन्स ऑफ फ्लैजेला सूडोपोडिया. देन वी डिड बाय फ्लैजेला, then by Syria, then by wriggling से worm like, and mucilage के mucilage locomotion by mucilage. ये हमने किए. इनमें ये तीनों का मैंने पहले रोल बताया आपको. इसके फिर हमने किए थे that is we have lobopodia, we have फिलोपोडिया, वी हैव एक्सोपोडिया, वी हैव रेटिकुलोपोडिया. तो मैं ये चाहता हूँ कि क्लास में ही आपको याद हो जाएं सारी चीज़ें. यहाँ रिगलिंग है, ये वॉर्म की तरह हैं. ये सीलिया हैं, बहुत सारे होते हैं. ये फ्लैजेला है, फ्लैजेला एक या दो होते हैं. सो ये म्यूसिलेज सिक्रीट करते हैं. सो दिस इज़ अबाउट द locomotion. Now we are moving to the next, that is nutrition. Nutrition in protist. Nutrition in protist. Nutrition in protist ये 6 टाइप का है. We have 6 types of nutrition.
nutrition. First is a photosynthetic. Photosynthetic protist. Photosynthetic nutrition और holozoic nutrition second. Holozoic, एक एक वर्ड को हम एक्सप्लेन करेंगे. देन सेप्रोबिक, देन पैरासिटिक, then mixotrophic, and then symbiotic. देखिए बेटे, ये सारी चीजें आगे आगे चलते आपको सारी क्लियर होंगी. यहाँ आपने सिर्फ बेसिक सा सिर्फ नाम याद रखने कि क्या क्या ये टाइप्स हैं न्यूट्रिशन इन प्रोटिस्ट. फोटोसिंथेटिक को होलोफिटिक भी कहते हैं. होलोफिटिक. होलोजोइक, होलोजोइक न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको जूट्रॉफिक भी कहते हैं. कंपटीशन में पूछा जाता है. जूट्रॉफिक एनिमल की तरह, और फैगोट्रॉफिक. जूट्रॉफिक और फैगोट्रॉफिक. ट्रॉफिक होता है न्यूट्रिशन से रिलेटेड, फैगो होता है फूड. लिखो फैगोसाइटोसिस. ये वर्ड मीनिंग बेटे आपने बहुत इंपॉर्टेंट है. वर्ड मीनिंग अलग से लिखने हैं इनके. ट्रॉफिक इज न्यूट्रिशन और फूड से रिलेटेड. Then hollow is complete. Sepro बहुत इंपॉर्टेंट है. सेप्रो इज रॉटन, गला सड़ा, रॉटन. सो जल्दी से नोट डाउन करिए. Nutrition in protist. Photosynthetic, holozoic, saprobic, parasitic, mixotrophic, and symbiotic. अब आइए हम पहले की बात करते हैं.
photosynthetic. Photo is light. Photo is light. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर लाइट पड़ती है क्लोरोफिल के ऊपर और ये फूड बना देते हैं. Basically this is the photosynthetic. Then second is holozoic. Holozoic is basically it is ये इंजेक्शन एंड डाइजेशन. ये देखिए ये फूड है, ये फूड है एंड यहाँ ये बैक्टीरिया अमीबा है, ये फूड है. तो ये क्या करेगा, अमीबा it forms pseudopodia around it and after that it ingest it, then digest it. सो इसको कहेंगे होलोजोइक. कंप्लीट है, एनिमल की तरह. जू मीन्स एनिमल की तरह. देन वी हैव अ नेक्स्ट इज सेप्रोबिक. सेप्रो मैंने बताया कि सेप्रो इज अ रॉटन. ये ऑर्गेनिज्म है और ये कोई हमारे पास रॉटन फूड है, रॉटन फूड मटेरियल है. सो व्हाट विल बी हैपनिंग, ये इसके एंजाइम्स क्रिएट करेगा और वो एंजाइम इस रॉटन जो डीके एंड डीकम्पोज इस रॉटन मटेरियल को ये डाइजेस्ट कर देगा और जब ये डाइजेस्ट होगा तो ये ऑर्गेनिज्म इनको एब्जॉर्ब कर लेगा. दिस इज नोन एज सेप्रोविक. बिल्कुल सिंपलेस्ट वे से आपको ऐसे समझ आना चाहिए. देन इज द पैरासिटिक. पैरासिटिक में फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, obtain food from the body of other organism. Then we have a very interesting case that is mixotrophic. इस ऑर्गेनिज्म की वजह से साइंटिस्ट को सोचना पड़ा कि ये क्लासिफिकेशन में कहाँ रखा जाए. तो ये यहाँ देखिए ये ऑर्गेनिज्म है कि यूग्लिना. यूग्लिना इज ऑटोट्रॉफिक. जब तक तो हम इस यूग्लिना को सपोज ग्रो कर रहे हैं किसी मीडियम में और लाइट डाल रहे हैं तो ठीक है, इट इज़ ऑटोट्रॉफ. जब हम ये लाइट बंद कर देंगे तो ये यूग्लिना मरेगा नहीं. ये क्या करेगा कि जिस मीडियम में है उसी से फूड एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा. तो इट चेंजेस टू हेटेरोट्रॉफ. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें दोनों टाइप का न्यूट्रिशन हो, ऑटोट्रॉफिक भी और हेटेरोट्रॉफिक भी, उनको हम कहेंगे मिक्सोट्रॉफिक. समझ आ गया बेटे. सो ऑटोट्रॉफिक यूग्लिना को हम एक ट्रे में हमने मटेरियल डाला है, फूड मटेरियल डाला है. वो उस फूड मटेरियल को नहीं ले रहा है क्योंकि लाइट ऊपर से गिर रही है तो लाइट से वो फूड बना रहा है.
तो अगर हम उसको लाइट नहीं डालेंगे तो क्या होगा, इट लूज इट्स क्लोरोफिल, उसकी क्लोरोफिल उड़ जाएगी। क्लोरोफिल उड़ जाएगी तो मरेगा नहीं, दूसरा ऑर्गेनिज्म वो मर जाएगा, वो मरेगा नहीं। ये क्या करेगा, उस मीडियम में से जिसमें उसको ग्रो कर रहे हैं, वो डाला हुआ है हमने, उसी से मटेरियल एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, इट एब्जॉर्ब करना शुरू करता है, डाइजेशन शुरू हो जाएगी। सो व्हाट वी कॉल इट द मिक्सोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। देन वी हैव द सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक होता है जहाँ म्यूचुअली बेनिफिट होता है दोनों को, ये हम एग्जांपल्स में डिस्कस करेंगे। म्यूचुअली बेनिफिटेड टू बोथ, म्यूचुअली बेनिफिटेड टू बोथ ऑर्गेनिज्म। सो these are the 6 टाइप्स। बहुत ही सिंपलेस्ट वे से मैंने आपको बताया, यू कांट फॉरगेट देम, सो नोट डाउन दिस। After the class I'll ask you if there is any problem, so till that time please mute your mic. But you are not recording yet.